collision is interaction between two bodies for a short interval of time. Okay. Now we'll see what happens in collisions. Everyone be with me. Some formulas, some sums we are going to do. Suppose there is a mass m1 going at the speed of v1. Spring m2. Okay, going at the speed of v2. Achha, suppose v1 is greater than v2. Can anyone tell me what is going to happen? Who will catch who? Who will catch who? Please respond. Huh? m1 is going to catch m2. यहाँ पर क्या होगा? The spring will compress, right? m1 spring m2. Can I say when the spring compresses, spring force will be acting here? This spring force will make v1 lesser and v2 more. तो इसका जो v1 है वो कम होकर हो जाएगा सपोज v1 डैश और ये हो जाएगा v2 डैश. प्लीज डोंट एनोटेट. ओके. आफ्टर सम टाइम स्प्रिंग और कंप्रेस होगा एंड m1 ये बहुत कंप्रेस हो गया. ये m2 they both will reach a common speed v. तो आपको तो पता है कि v1 घट रहा है और v2 बढ़ रहा है. v1 घट रहा है और v2 बढ़ रहा है तो एक पॉइंट ऐसे बीच में आएगा where they will reach a common point. Yes or no, sir? Hello, hello. This point is the point of maximum compression. This point is a maximum compression. इसके बाद में again they will start separating because FSP तो ऐसे ही लग रहा है. इसके बाद में क्या होगा? They both will go with different speeds. Again, he let him be going with v1 double dash and let he be separated with v2 double dash. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है, ये कॉन्सेप्ट. अच्छा, दिस टाइप ऑफ कोलिजन वी आर डूइंग इज एन इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड. व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम बीइंग कंजर्व्ड? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? प्लीज रिस्पॉन्ड. व्हाट इज मोमेंटम फॉर्मूला? हेलो. Mass into velocity. What is initial momentum of this system, beta? m1 v1 plus m2 v2. अच्छा, इधर का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. इधर का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इधर का m1 v प्लस m2 v. और इधर का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? m1 v डबल डैश plus m2 v double dash. Are you all understanding? So initial momentum is final momentum. वो any damn situation के लिए initial momentum is equal to final momentum. Yes or no? अच्छा, अगर हमको लिखना है this is initial momentum is final momentum लिखा है मैंने पूरा सब जगह पर. Can I write initial kinetic energy is final kinetic energy also? Kinetic energy का फॉर्मूला पता है ना? इस सिचुएशन के लिए अगर लिखना है तो it will become half m1 v1 square प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. इस सिचुएशन के लिए लिखना है सेकंड वाले सिचुएशन के लिए तो कैसे लिखेंगे? हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर.
इस सिचुएशन के लिए लिखना है तो लिखेंगे हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, और लास्ट वाले सिचुएशन के लिए लिखेंगे इट विल बिकम हाफ m1 v डबल डैश द होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v डबल डैश द होल स्क्वायर. Are you all understanding? Hello, hello, hello. Yes. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ कोलिजन्स. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. कैन यू ऑल रिमेंबर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलिजन्स वर देयर बेटा? सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन, फिर Inelastic. one second. Has the Matunga branch entered? Hello, एक मिनट. Let me see. Have I sent the link to them? Oh my God, एक मिनट. I have not sent the link to them. Please just wait for 5 minutes. Let them enter. I have not sent the link to them only. ओके, ठीक है, चलो. आज दिस इज रिकॉर्डेड ओनली, तो कोई वो नहीं होता है. चलो बताओ कौन सा कोलिजन था सबसे पहले? इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन मींस व्हाट इज कंजर्व्ड? मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड Kinetic energy. आल्सो कंजर्व्ड. ठीक है. एंड सेकंड इलास्टिक, अच्छा, इलास्टिक कोलिजन के फॉर्मूलाज याद है आपको? v1 का m1 minus m2 हेलो अपॉन m1 plus m2 u1 याद आ रहा है? 2m2 upon m1 plus m2 into u2. Similarly, what will be v2? Please, 2m1 m1 plus m2 u1 plus m2 minus m1 on m1 plus m2 into u2. भाई ये आता है कि नहीं आता है ये दोनों? हेलो हेलो, you all remember? Yes, sir. You all don't know this. This is very, we have done this before. Elastic collision. अच्छा, how much is coefficient of restitution for elastic collision? 1. What is the formula for coefficient of restitution? Relative velocity of separation upon relative velocity of approach. That is v2 minus v1 upon u1 minus u2. This is elastic collision. Yes or no? Second wala collision is which collision beta? Inelastic collision. Perfectly. We call it as perfectly inelastic collision. Where momentum is to conserved, but kinetic energy initial is not equal to kinetic energy final. There is total loss of kinetic energy. What formula will I apply? Initial momentum is final momentum and total loss of kinetic energy का मतलब m1 was going with u1, m2 is going with u2, but after collision they go with V common. v common. Very good beta. So what initial momentum is final momentum का formula, if you want to apply, you can say m1 u1 plus m2 u2 is m1 plus m2 into v common.
सोल्ड बी कॉमन का फॉर्मूला m1 u1 सबको पढ़ाया था इज m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 आई ऑल अंडरस्टैंडिंग सर. अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 बार माइनस u2 बार द होल स्क्वायर. ये याद रखना, ये दिया था मैंने. हाँ हेलो. Yes, sir. हाँ ये वाला याद रखना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. बहुत सारे सम सॉल्व होते हैं इससे. अच्छा, तीसरा वाला कोलिजन कौन सा था? इम्परफेक्टली इलास्टिक. व्हाट इज दिस एग्जांपल? प्रैक्टिकल एक्सीडेंट होते हैं रास्ते पर, वो वाले. मतलब क्या? m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2. अच्छा, इसमें देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. मोमेंटम इज कंजर्व्ड. Kinetic energy is not conserved. There is some loss. There is not total loss. There is some loss. I all with me. I all with me. समझ में आ रहा है? ये बार बार पहले भी कर चुके हैं हम लोग. हेलो. यस सर. यस सर. चलो इधर, हाँ इधर ध्यान देना, मेरी बात सुनो. अभी इधर v1 और v2 का फॉर्मूला क्या रहेगा? किसको याद है फॉर्मूला v1 और v2 के? m1 minus m2. नो. हाँ बोलो. m1 माइनस m2. m2 नहीं है बेटा यहाँ. दैट M2 वाज E. पीछे. दैट वाज पीछे. ये दैट वाज परफेक्टली इलास्टिक. इधर है इम्परफेक्टली इलास्टिक. मैं लिखता हूँ m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2 upon into u1 plus m2 into 1 plus e. m2 प्लस em2 ऐसे भी लिख सकते हैं. वेरी गुड. upon m1 plus into u2 और उल्टा बस. हेलो, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? yes yes sir. हाँ तो Yes, sir. उसे उल्टा कर देने का. m2 माइनस em1 अपॉन m1 प्लस m2 into u2 m1 प्लस em1. म्यूट योर माइक बेटा प्लीज. हेलो, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग? आई ऑल अंडरस्टैंडिंग? आई ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस सर. Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. अच्छा, दिस इज अ वेरी यूनिवर्सल फॉर्मूला. व्हाई? बिकॉज E1 हो तो भी आ जाएगा, E0 हो तो भी आ जाएगा, E हाफ हो तो भी आ जाएगा. यस और नो सर? तो बेहतर है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो. And this is given in your sheets. I have done the sheet before only of law of conservation of momentum. Hello. हाँ सर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब एक और एक कोलिजन की बात करेंगे, कॉल्ड एज ऑब्लिक कोलिजन. कौन सा कोलिजन? कौन सा कोलिजन? ऑब्लिक कोलिजन. Oblique collision. ऑब्लिक कोलिजन. प्लीज बी विथ मी. ऑब्लिक कोलिजन में ओके, सपोज एक दीवार है. A ball comes ऐसे आ रहा है और इस स्पीड से आके टकरा रहा है. कितना एंगल बना रहा है? थीटा. यस और नो? यस और नो? हेलो. यस सर. हाँ, अब दीवार से जब आकर वो टकराया, स्पीड कैसे था? ऐसे था. हाँ, ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा ही रहेगा ना. अरे मैन ऑल्टरनेट. व्हाट इज दिस कॉल्ड? है याद है ना भाई? बराबर है. ओके, ये कंपोनेंट कौन सा रहेगा और ये कंपोनेंट कौन सा रहेगा? आई ऑल विथ मी? हेलो हेलो हेलो. यस सर. यस सर. yes sir. कैन एनीवन टेल मी, ये बॉल के ऊपर जो जर्क लगा ना दीवार के कारण, जो इम्पल्स लगा ना दीवार के कारण, वो कौन से डायरेक्शन में लगा? 1 के 2?
जो दीवार के कारण जो झटका लगा ना बॉल के ऊपर, 2 Two 1 sir. One. इट इज अ फ्रिक्शनलेस 1 1 इम्पल्स तो ऐसे ही लगेगा ना यार। अगर ये बॉल है तो इसका इम्पल्स इधर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन याद नहीं है? हेलो हेलो। yes sir. तो ये जो झटका लगा वो वी कॉस पे लगा कि वी साइन पे लगा? V positive. हाँ हाँ, वी साइन पे क्या लगा? Man, wait. कुछ नहीं लगा। अगर फ्रिक्शन होता तो वो लगता, Grab. बट फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। हेलो, Yes sir. तो कैन आई से आफ्टर कोलिजन ये Sin ये theta ball है। component वी साइन थीटा तो सेम ही रहेगा। वो चेंज हो गया. V ये positive. इट विल बिकम E times Yes sir. V of E positive. cos theta. What is E stand for? Coefficient of restitution of the wall which will be given. Yes sir. हेलो 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 हेलो। Yes, एंड sir. इन दोनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में बॉल उछल कर जाएगा। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, if I tell you E is 1, then E is 1, then E is 1, then Let me ask you. what will happen? Then what will happen? No change in magnitude sir. In direction sir. जिस थीटा से वो आया था उस थीटा से वो पलट कर जाएगा with the same speed. If E is Yes. what? 1. 1. I say it is obeying law of reflection of light. हेलो हेलो हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है Yes, sir. I'm there. यार। समझ में आ रहा है भाई? 40 people are there. Yes, Are sir. you all understanding? Please. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ भाई, Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर E1 हो गया तो जिस एंगल से वो आया था उसी एंगल पर पलट के जाएगा, मतलब नॉर्मल के साथ। हाँ, with respect to normal, whatever angle it is making with the incident ray, the reflected ray will also make the same angle. But this will only happen when the collision is perfectly elastic, otherwise no. यार समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. I want every chapter should become very perfect. आप दो बार करो, रिकॉर्डिंग देखो, मेरे लेक्चर्स अटेंड करो, बहुत पक्का हो जाएगा। मिस मत करो यार कुछ भी। चलो ठीक है, now we go to the sums. Are you all with me? Yes, Sums पर sir. जाएंगे, Yes, sir. sums पर जाएंगे। Elastic, चलो then what sums। will change? हाँ बेटा, एक So मिनट। if the E is less than 1, so how will the हाँ, how will the velocity? situation be? How will the situation be? देखो इधर मेरी बात सुनो, ये हो गया, E को बोलते हैं हाफ, बराबर वेनिशा? Yes, sir. हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछा करो बेटा इधर। हाँ, ये देखो, ये आ रहा है 20 है, कितना एंगल है? थीटा, बराबर? Yes, sir. कैन आई से ये कंपोनेंट कौन सा है? ये तो कंपोनेंट V है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये कौन सा कंपोनेंट? V cos theta. ये कौन सा कंपोनेंट? V sin थीटा। We sin theta. कौन सा कंपोनेंट चेंज होने वाला है, कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा? Cos will change. तो साइन विल रिमेन द सेम। कॉस कितना हो जाएगा? कॉस उल्टा हो जाएगा ना टकराने के बाद में। Yes, इट sir. विल बिकम Yes, sir. E टाइम्स ऑफ V cos थीटा, मतलब हाफ V cos थीटा हो गया। यस और नो? Yeah. Yes, sir. अभी Yes, ये sir. सब अगर वैल्यूज दिया है, इसका वैल्यू दिया है, तो कैन आई फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द पैरेललोग्राम? हाँ, yes sir. ऑलरेडी आर का फॉर्मूला वनीशा बताएंगे, अंडर रूट ऑफ, याद आ रहा है ये? अरे Yes sir. Yeah. हेलो हेलो। और फिर मिल जाएगा ना Yes, sir. आपको, ये एंगल भी मिल जाएगा, एंगल फाई, दैट इज tan phi will become opposite upon adjacent. yes or no? सम करेंगे तो समझ में Yes आएगा। sir. So, but when we did conservation of momentum, that time we did not consider E in No. such kind of sums. No, we didn't consider E. We didn't consider E.
Okay, because initial momentum was equal to final momentum only. Yes or no? Yeah. हाँ भाई, यहाँ पर भी are considering v, that is v2 minus v1 upon u1 minus u2, because पलटने के बाद में जर्क तो लगा ना, यहाँ पर जब बॉल आया तो ऐसे एक जर्क तो लगा. आपको समझ में आ रहा है कि कुछ डाउट है? और हेलो? So got it. ठीक है, सम्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. वी कम बैक. सबको दिख रहा है पीपीटी? हेलो? Yes. Yes, sir. Yes. sir. ओके ओके, चलो बताओ क्या क्वेश्चन है. कोई पढ़ेगा? इफ आई रीड ना इट विल बिकम मोनोटोनस. कोई पढ़ो यार, प्लीज रीड, प्लीज रीड. हाँ पढ़ो पढ़ो. यस. Two blocks of masses 3 kg and 6 kg respectively are placed on a smooth horizontal surface. They are connected by a light spring of force constant K is equal to 200 Newton per meter. Initially, the spring is unstretched. The indicated velocities are imparted to the blocks. Find the maximum extensions of the string. अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, सब लोग इधर मेरी बात सुनो. ओके, ये वही कंसेप्ट है जो मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात करता हूं. सपोज ये इधर जा रहा है 1 से और ये इधर जा रहा है 2 से. स्प्रिंग फोर्स कैसे लगेगा? स्प्रिंग फोर्स कैसे लगेगा? हेलो? बीच में आएगा, मगर कौन से डायरेक्शन में आएगा? अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ. अंदर की तरफ. यस, स्प्रिंग फोर्स विल बी दिस वे. यस और नो? हेलो? Yes, sir. ये स्प्रिंग फोर्स स्पीड को बढ़ाएगा कि घटाएगा? ये जो स्प्रिंग फोर्स है, यस यस यस, कम ऑन प्लीज, कम ऑन प्लीज. इट विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज. डिक्रीज होते होते 1 and 2 दोनों डिक्रीज हो जाएंगे. यस और नो सर? Yes. Okay, so they will decrease and the spring is going to compress or expand? Huh? Spring is compressing or expanding? Expanding. अरे भाई, वो 2 से उधर जा रहा है, वो 1 से उधर जा रहा है, तो क्या होगा? It will expand, right? It will expand, beta. It will expand. Yes or no? या तो Yes, sir. थोड़ा सी अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दो जिससे आपको और पता चलेगा. कंसिडर दिस 3. ये 3 को पकड़ो, इसको रेस्ट पर मान लेते हैं. तो ये 6 है, इसको क्या मैं रिलेटिव स्पीड के कारण 3 मीटर पर सेकेंड दे सकता हूं? याद है, इसका वेलोसिटी उल्टा करो और उसको दे दो. हेलो, रिलेटिव मोशन. अरे 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 अरे, व्हाट मैन, अंडरस्टैंडिंग? Okay. Yes, sir. So this is what at time 0. कुछ समय बाद क्या होगा? 6 आगे बढ़ेगा. हेलो? Yeah. स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगा. ये स्प्रिंग फोर्स ने क्या किया? 3 को बढ़ाया, घटाया? Yeah, accelerate. हाँ, इसको घटा दिया, बराबर. Let this be V1. Spring will extend. And this will be 3, which will gain another velocity V2. But now also V1 is greater than V2. If V1 is greater than V2, obviously the spring is going to expand. Concept सिखा रहा हूं, concept. Hello? Where is spring force acting again? अंदर की तरफ? Inside. ये स्प्रिंग फोर्स अभी और V1 को कम करेगा, V2 को बढ़ाएगा. At a certain instant T double dash, he will also become V, and he will also become V. Yes, sir. This is the point where the spring will have what, sir? Maximum Maximum expansion.
हेलो, इट इज नॉट कंप्रेसिंग. अरे हेलो, Yes, sir. खींचा जा रहा है ना बेटा, खींचा जा रहा है वो. Expansion. एक्सपेंशन. डिड यू अंडरस्टैंड बाय रिलेटिव मोशन मेथड? कुछ डाउट है इसमें? क्या डाउट है इसमें? नहीं है ना? अच्छा, जब भी ऐसे टाइप का सम आए बेटा, आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? m1 u1 बार प्लस m2 u2 बार इज इक्वल टू m1 v कॉमन प्लस m2 v कॉमन. Because maximum expansion only happens when both are common. तो इस सिचुएशन और इस सिचुएशन के बारे में आपको मोमेंटम इनिशियल और फाइनल अप्लाई करनी है. चलो, m1 कितना है? 3 है. m1 3 है ना. u1 कितना है? -1. टेक -1 उल्टा डायरेक्शन में. m2 कितना है? 6 into 2. m1 is 3 into v common को v common plus 6 into v common. Are you all with me? अरे कुछ हाँ या ना बोलो. Yes, sir. This will be -3 plus 12 is 3 plus 6 कितना होता है भाई? 9. v common, तो v common कितना हो गया? 1. yes or no? Yes, sir. Yes, yes or no? अच्छा, और यही सिचुएशन और ये सिचुएशन के बारे में इनिशियल एनर्जी इज फाइनल एनर्जी. कैन आई से इस सिचुएशन में इनिशियल एनर्जी कितना था? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. और फाइनल एनर्जी में सिचुएशन में कितना है? इसमें कितना एनर्जी है? बोलो बोलो बोलो. हाफ m1 v कॉमन स्क्वायर प्लस हाफ m2 v कॉमन स्क्वायर प्लस स्प्रिंग में भी खिंचाव आ गया, तो स्प्रिंग के खिंचाव के एनर्जी को क्या बोलते हैं? हाफ के x स्क्वायर, x मैक्सिमम द होल स्क्वायर. हेलो 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 हेलो. Yes, sir. So can you change the color? हाँ, I'll change the color. Yes, sir. ओके, ठीक है चेंज द कलर. ये इतना समझा? Yes, sir. अच्छा, व्हाट विल कैंसिल थ्रू आउट? क्या है आंसर? क्या है? m1 कितना है? 3. u1 इज -1 का स्क्वायर प्लस m2 इज 6 2 स्क्वायर. m1 3 फाइनल इज 1 स्क्वायर प्लस 6 into 1 स्क्वायर प्लस k कितना है? 200 into x मैक्सिमम स्क्वायर. Yes, sir. x मैक्सिमम यहां से आपको मिलेगा 0.3 मीटर. Are you all with me? हेलो Yes. Yes, sir. Yes, सर, इतना बहुत सर ये सब करेगा कौन सर? हमारे पास टाइम थोड़ी है, हैं? मैं आपको एक सीधा शॉर्टकट देता हूँ. चाहिए शॉर्टकट ना? हेलो, yes, sir. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. इधर ध्यान दो. हाँ, whenever they talk about maximum, ये फिर से आ गया यार. नहीं, whenever they talk about maximum extension or compression, ये फॉर्मूला पे ही लगेगा. ऐसे कभी किधर भी मत लगा देना. फॉर्मूला इज हाफ k x maximum the whole square will become half m1 m2 upon m1 plus m2 u1 bar minus u2 bar the whole square. ये है. वेनिशा बेटा, हेलो Yes, sir. बेटा, हाफ कैंसिल हो गया. Yeah. k कितना है क्वेश्चन में? 200. x1 200. m1 कितना है? 3. u1 बार कितना है? -1. हाँ, यहाँ पर गलती नहीं करना. हेलो, दिस इज -1. हाँ, ये कुछ लोग गलती करेंगे फिर बोले आंसर नहीं आ रहा है. अच्छा, व्हाट इज u2? +2 +2 हो जाएगा ये.
ये आंसर x मैक्सिमम आपको मिलेगा। बट इसका आपको ध्यान रखना है, जो वेक्टर फॉर्म है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यस और नो? दिस इज शॉर्टकट, दिस इज शॉर्टकट। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज का ध्यान रखिए प्लीज। क्या हुआ? हेलो? हेलो? Yes, sir. Sir. वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज और एक मिनट, कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस करते हैं इसमें। चलो, who else is there? मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर देना बेटा। तनीषा, इज तनीषा देयर? तनीषा, हेलो? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो प्लीज। What is the question telling you? Can anyone read? In one dimensional elastic collision of equal masses, velocity has interchange. बराबर है? हेलो हेलो, प्लीज म्यूट योर माइक। Yes, sir. अगर मास सेम हुआ तो वेलोसिटी इंटरचेंज होगा। अगर मास सेम नहीं हुआ तो क्या वेलोसिटी इंटरचेंज होगा? No, sir. ये m है, सपोज इट इज गोइंग विद हाँ. v, और ये m है, इट इज एट रेस्ट। तो आफ्टर कोलिजन व्हाट विल हैपन? ही विल कम टू रेस्ट एंड ही विल गो विद v। ये तो बराबर है। Perfectly elastic. हाँ। Yes, sir. अच्छा, सपोज masses are not the same, then will they interchange? No, sir. No, sir. No, they will not interchange। वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग they will not interchange। याद रखना, वो याद है ना फॉर्मूला m1 minus m2 upon m1 plus m2। Yes, sir. That Yes, interchange will only happen when m and m is the same. When m1 and m2 are different, they will not apply that formula of interchange। Got it? Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी बताओ। ओके, आफ्टर एंड हेड ऑन, मेरी आवाज आ रही है ना? आफ्टर एंड हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, टू बॉल्स ऑफ इक्वल मासेस ऑब्जर्व्ड आफ्टर द कोलिजन, मतलब आफ्टर की बात हो रही है। ओके, एक मास और दूसरा मास, एक मास का स्पीड कितना था? 3 meters along positive x axis, एंड दूसरा स्पीड कितना था? 2 meters along negative x axis। ये आफ्टर है। भाविन, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताओ बिफोर हाँ, सर। क्या हालत? बिफोर कैसे होगा? इलास्टिक है ये। अभी हमने पढ़ा था कि दे विल इंटरचेंज स्पीड्स। Speeds को interchange करना पड़ेगा, sir. हाँ, तो बोलो कैसे होगा? 2 इसको कौन सा मिलेगा? पहले वाले को कौन सा मिलेगा? 2 मिलेगा, sir. 2 कौन सा डायरेक्शन में? ये। हाँ, yes, sir. और इसको कौन सा डायरेक्शन में मिलेगा? ये। याद रखना। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो? Yes, sir. या, सो दे विल Sir, इंटरचेंज। लेकिन डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए ना, sir. डायरेक्शन भी इंटरचेंज हुआ ना बेटा, सेम ही डायरेक्शन उल्टा हाँ, करके अच्छा, इंटरचेंज हाँ। क्यों कर रहे हो आप? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो, question number 21. A ball of mass 1 kg with a speed of 4 meters per second collides elastically with another ball 2 kg moving with 6 meters per second in the opposite direction. Find the velocities after collision elastically. V1 का फॉर्मूला बताओ। Hey man, come on. Into U1 plus 2m2 upon m1 plus m2 into U2. चलो, substitute. Come on. 1 minus 2 upon 1 plus 2 into 4 Very good. plus 2 into 2 upon 1 plus 2 into minus 6. 1 plus 2 कितना हो गया? 1 plus 2 into minus 6. into Minus 6. हाँ, minus ये। 6. Can anyone find V2? Yes, sir. हेलो? V2 है क्या V1 है? V1 है। हाँ, yes, sir. Yes, sir. हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आप V2 भी ढूंढ सकते हो। चलो, V2 का फॉर्मूला क्या है?
M1 minus M2. No. 2 M1 M2 minus M1 upon M1 plus M2 into U2 plus 2 M1. Very good बेटा, बोलो. 2 M1 upon M1 plus M2 into U1. 2 M1 upon M1 plus M2. yes or no? ये तो कर सकते हैं ना आप लोग. Yes, sir. Hello, you all can do it. Yes sir. Yes, sir. बहुत बहुत अच्छा समय है. Everyone be with me. Everyone, ये सम आ गया, सब आ गया. You have done the whole collisions. बस 2-3 सम और. Please pay attention with me. ध्यान दो इधर बेटा, ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो. He is telling you 3 balls are there, A, B and C, such that MA is equal to MC. मतलब ये दोनों M है. Okay. He is M. He is M. And he is 4M. Hello. अच्छा. Find number of collisions. अच्छा, कोई बता सकता है सबसे पहले कौन टकराएगा? B, AB, ABC में से सबसे पहले कौन टकराएगा? B, C से BC. B and C. Very good. B, C. ये B से जा रहा है. 4M, M. अच्छा, he is at rest. Yes, बेटा sir. फॉर्मूला बोलो V1 V2 का. V1 is equals to M1 minus M2 for M1 plus M2 into U1 हाँ. Plus 2M. that term will not come only because second one is at rest. बराबर है. हाँ, U2 0. हेलो. Yes, sir. अच्छा, ये क्या हो जाएगा? चलो बताओ. कितना हो गया ये? करेक्ट. Yes. Yes. अच्छा, दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा है V2 का? 2M1 upon M1 plus M2. सेकेंड वाला टर्म तो नहीं आएगा. 2M1 that is 8M. I all with me. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ? ये B जो था वो हो गया. एक मिनट, मैंने कुछ गलती की है. हेलो. मैंने क्या गलती की है? मैंने कुछ गलती की है बेटा यहाँ पे. प्लीज म्यूट योर माइक. हेलो, कौन? प्लीज. मैंने कुछ गलती की है. क्या गलती की है? एवरीवन प्लीज फास्ट. क्वेश्चन में पढ़ने में कुछ गलती की है मैंने. बेटा ये 4M है. ध्यान दो जरा. Everyone just pay attention again. MA. This is M. This is 4M. This is also 4M. Are you all understanding क्या गलती हुई है? हेलो. Yes, sir. हाँ भाई, ये ध्यान रखना भाई, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा. तो B is M and C will be 4M. चलो फटाफट बताओ इसका वैल्यू क्या रहेगा V1 का? M1 minus M2 upon M1 plus M2 into V minus 3 by 5V and V2 will become 2M1 upon M1 plus M2 into B. So what will happen to B? This guy will go with minus 3 by 5, मतलब उल्टा. And what will happen to C? This guy will go with 2 by 5. Hello. Yes. Yes. अच्छा. अभी इधर मेरी बात सुनो बेटा. अब कौन किससे जाके टकराएगा?
कौन किससे टकराएगा अभी? बी ए के साथ टकराएगा सर। बी जो m था उसका स्पीड कितना था? 3/5 ऑफ v और इसका वेलोसिटी कितना है? ये 4m है, बराबर है? हेलो 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 हेलो। Yes, sir. सर अच्छा Yes, sir. अभी थोड़ा है ना स्मार्टनेस लगाते हैं, स्मार्ट वर्क। हेलो प्लीज बेटा, आवाज किसका पीछे से आ रहा है? थोड़ा म्यूट करिए माइक को। यस there's a lot of disturbance at the back. Jagdish P, sir. Please mute your mic. हाँ ध्यान दो इधर, सुनो। देखो जब m 4m से टकराया, हेलो हेलो, what is Yes, the original sir. velocity? What is the original velocity? v. जब m 4m से टकराया तो m हो गया 3/5 of the original and 4m हो गया 2/5 of the original. Original is v. हेलो 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 हेलो। Yes, sir. I need to mute you all यार, पीछे से। Yes, listen to me now. If you all want to unmute, you all can unmute on your own self. ठीक है, ध्यान दो उधर। अच्छा, now भाविक बेटा, you tell me, ओरिजिनल वेलोसिटी यहाँ पे 3/5 v है ना? हमने क्या पढ़ा? अगर ओरिजिनल v है तो m वाला हो जाएगा 3/5 एंड 4m वाला हो जाएगा 2/5। यस और नो? हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ 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 हाँ। अब अगर आप मुझे बताएंगे तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ओरिजिनल इज 3/5 v। चलो थोड़ा 2/5 होशियार। of 3/5 who and is going to become 2/5 of 3? The 4m wala. yeah. okay so He is going to become 2/5 of 3/5 v. 3/5 मतलब कितना हो गया? 6/25 v। हेलो। Yes, sir. अच्छा b वाला कितना हो जाएगा? b वाला 3/5 of 3/5 3/5. and in the ulto direction हेलो। उल्टो डायरेक्शन। Yes, हाँ yes sir. sir। so 3/5 of 3/5 कितना होता है? 9/25 9/25. मतलब फाइनली क्या होने वाला है? a जो है वो ऐसे चलेगा 6/25 v से, b जो है वो चलेगा 9/25 v से, और c कितना से चल रहा था? c ये है ना, 2/5 ये फाइनल है। हेलो। yes sir। अच्छा अभी क्या b c को पकड़ पाएगा? नहीं से वेलोसिटी कम है। हाँ, तो हाउ मेनी कोलिजन्स हैव हैपेंड इन द होल सिचुएशन? 2 2. So what is the answer? 2. I hope everyone has understood this question. Yes, sir. यार समझ में आ रहा है? हेलो। So can you please explain once more the latter part? The next part, okay. See, the question tells you that the original speed is v. When 4m collided with m, 4m became 2/5 of the original. And what did m become? 3/5 of the original. बराबर है? ये बराबर है। अच्छा, फर्स्ट कोलिजन के बाद ओरिजिनल स्पीड कितनी हो गई? 3/5। अरे बाबा, ये दोनों टकरा रहे हैं ना अभी। हेलो। Yes, sir. ये दोनों टकरा रहे हैं, तो ओरिजिनल स्पीड तो ये है। तो 4m कितना हो जाएगा बेटा? 4m कितना हो गया था स्टार्ट में? 2/5 ऑफ द ओरिजिनल। तो अभी कितना हो जाएगा? 2/5 ऑफ द ओरिजिनल। Yes, sir. एंड b वाला कितना हो जाएगा? 3/5 of the original. एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो ये आ रहा है ऐसे था, अब जा रहा है ऐसे है। यस और नो? Yes, sir. So then you get the final speeds of each and every one, and then you see that this 9/25 and this 2/5 can never catch each other because this speed is less and this speed is more.
Yes, sir. So how many collisions will happen in the whole situation? 2 collision. 2 collisions. Did you get it? Yes, sir. Thank you, sir. हाँ आगे बढ़ते हैं. चलो बात सुनो बेटा. I'll go to the चलो इधर आ जाओ. कुछ अच्छे वाले सम्स. A sphere of mass m is traveling with the speed v. Collides with a stationary sphere. हाँ भाई. Collides with a stationary sphere and brought to rest. If A is brought to rest, मतलब ये A है और ये B है, and initially this is also stationary, this is at rest. इसका M B का वैल्यू मुझे पता नहीं है. If A is brought to rest, A is brought to rest, and B is given a speed V. कितना स्पीड आ गया इसके पास? कितना आ गया? V का. सबको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई. अब कह रहा है, आपसे कह रहा है कि क्या क्या कह रहा है बेटा? Mass of V. मास ऑफ बी. क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? कैन आई से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम कितना है? mv. इसका तो जीरो है ना. हाँ बेटा. If the speeds have exchanged, so we cannot directly conclude that it will be the equal mass. इट विल बी इक्वल मास, बट यहाँ पर दे हैव आस्क्ड यू इन टर्म्स ऑफ बड़ो वी एंड छोटो वी. यस और नो? ये Yeah. छोटा ये बड़ा Yes, भी है. sir. तो जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आंसर देना है. आप समझ में आ रहा है बेटा? हेलो. Yes, sir. तो जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आंसर देना. हमको पता है कि मास सेम रहेगा. आई वाज आल्सो थिंकिंग दैट ओनली, बट जैसे क्वेश्चन है वैसे ही आंसर देना. व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? ये तो रेस्ट पर आ गया ना. इसका जीरो हो गया ना बेटा. इसका कितना रहेगा? एम बी कैपिटल वी. इनिशियल मोमेंटम वाज दिस ना. फाइनल मोमेंटम इज दिस. हेलो. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट Yes, इज sir. एम बी इक्वल टू? mu by V. This same as mu. ओके. यस और नो? Yes, अच्छा. sir. अच्छा. व्हाट इज ई का जनरल फॉर्मूला? V. Velocity of separation upon. व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? V2 minus बड़ो वी. एंड व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? छोटो वी. तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला? बड़ो वी अपॉन छोटो वी. अंडरस्टैंड बेटा? जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आप आंसर दो. आपको पता है वन होने वाला है. आपको पता है बड़ो वी एंड छोटो वी आर वन ओनली. दे आर द सेम, बट as the question is asked in terms of capital V and small v, we have to reply also in terms of small v and capital V. Did you all understand what is going to happen? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. आपको पता ही होगा कि तो पहले ही किया था कि उसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लास्ट दो क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे. चलो इधर ध्यान दो. स्पेयर है. मेरी बात सुनना. सब लोग इधर आंसर देंगे. एक स्पेयर है which is going with 2 I cap and 2 J cap. J cap मैंने नीचे मान लिया. चलेगा ना? हेलो. चलेगा ना भाई? Yes, sir. y axis मैंने नीचे मान लिया. So can anyone tell me what is the resultant velocity? ये ऐसे मत करो. Come on, please. What is the resultant velocity? 2 root 2. कितना एंगल बना रहा है? 45. 45. 45. कह रहा है जाके दीवार से टकराएगा. I know this is 45. This also has to be 45. बोलिए. Yes, sir. ये Yes, इनिशियल sir. सिचुएशन. ये इनिशियल सिचुएशन मैंने आपको बताया था. अच्छा. फिर से वही बनाते हैं. बॉल जब इधर आया
तो बॉल के पास दो स्पीड्स थी, एक 2 ये थी, देखो ये, और ये थी 2। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है कि कौन से डायरेक्शन वाला स्पीड चेंज करेगा। normal reaction. Cos. G cos theta. Perpendicular to the wall will change or along the wall will change? Along the wall. Perpendicular. Perpendicular to the wall. Along the wall is going to remain 2. Yes. Perpendicular to the wall ऐसे पलट जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा? E times. E का वैल्यू कितना है? Half. मतलब 1 हो जाएगा. So it will become 1. Yes or no sir? Yes or no? Yes. Yes, sir. When I say वो जब पलटेगा तो वो ये डायरेक्शन में पलटेगा, रिजल्टेंट क्या है? हाँ sir. वो ऑलरेडी Yes. रिजल्टेंट का फॉर्मूला √5. Under root 5 आएगा. Under root 5. हाँ sir. Yes or no sir? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये रिजल्टेंट will become √5. And can anyone tell me this angle? कैसे निकालते हैं ये एंगल? tan थीटा कैसे निकालेंगे? Yeah. Tan inverse of 2. नहीं, tan inverse of 2. हाँ, tan inverse of 2. Theta will be tan inverse of 2. पहले it was 45, but now it is going to become tan inverse of 2. 2. Yes or no? Yes, sir. अच्छा, E अगर 1 होता तो क्या होता? तो अगर वो 45 से Change. आता तो Change 45 ऐसे से जाता. जाता 45 से जाता. with the same speed. How much was the speed? 2. Are you all understanding what's happening? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये वॉल के क्वेश्चन है which you all need to understand. Yes or no? Hello? Hello? Yes or no sir? Yes, sir. Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं so that you all can be finished off. कह रहा है एक इंक्लाइन प्लेन है. एक मिनट. There is an inclined plane of angle alpha. There is an inclined plane see Sir, red color नहीं, sir. एक मिनट. Hello. It's not happening. एक मिनट. ओके, ठीक है, हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्यों हो जाए. Testing mode.
हाँ ठीक है, इधर देखो, एक इंक्लाइन प्लेन है एंगल अल्फा का, सब लोग मेरे साथ में हो। लास्ट क्वेश्चन, हेलो, Yes, sir. कह रहा है Yes, एक sir. बॉल गिरा विद द स्पीड v नॉट, जब वो उछलेगा, जब वो बाउंस होगा, तो कितने एंगल से बाउंस होगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अब मेरी बात सुनना सब लोग इधर, एंड इट इज इलास्टिक कोलिजन, व्हिच कोलिजन इट इज? Elastic. Elastic. Elastic collision. It came with alpha. Can I say when it comes over here, it will have this velocity v? सही है? सही है? Yes, sir. अच्छा, थोड़ा और I'll just do will this way. एक मिनट, it will have this velocity v naught. Can anyone tell me how much is this angle? This angle. Alpha. Alpha only. Angle between two lines and the perpendiculars are the same. I know that since it's an elastic collision, it will obey. Law of conservation of momentum. अरे what यार? Yes, sir. Of reflection, मतलब जितने एंगल से आया विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, उतने एंगल से हाँ, वापस जाएगा, वापस वापस जाएगा. जा। हेलो, Yes. हेलो, Yes, sir. हाउ मच एंगल इट इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एंगल चाहिए, कितना है फाई? चलो ज्योमेट्री यार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ पर, हाउ मच इज फाई? -2. अरे मेरा बच्चा ये 90 है ना पूरा। Yes, हेलो, sir. Yes, sir. उसमें से 2 अल्फा निकाल दो तो 5 will become 90 minus 2 alpha. did you get it? Yes, sir. So more than Yeah. enough questions we have done for collisions. आप लोग है ना, यूएसएस सेक्शन में collisions का एक सेक्शन है कि नहीं, वर्क एनर्जी पावर में? हेलो, Yes, sir. हाँ, sir. प्लीज सॉल्व इट, अगर डाउट्स है तो डाउट्स पूछ लो, पहले भी कर चुके हैं हम लोग, इसको थोड़ा पक्का करेंगे। एंड आई हैव सेंड द वीडियोस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। ये पूरा हफ्ता आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, नेक्स्ट वीक से वील बी स्टार्टिंग टू सॉल्व एवरीथिंग। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेडनेसडे आई विल बी डूइंग सम्स ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी थियरी, तो अगर जिन लोगों को अटेंड करना है वो लोग अटेंड करें, जो लोगों को नहीं अटेंड करना है वो लोग वीडियो देख लेंगे, ठीक है? Okay, sir. चलो, थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Bye. बाय।